Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. یہ ٹیبل تھوڑا سا بھائی دل سائڈ پر کر دیں جی، تھوڑا سا اس طرف کر دیں. تھینک یو. مسیح یسوع کے بابرکت پرفضل اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. میرا دل نہایت خوشی سے بھرا ہے کہ خداوند نے ایک اور موقع ہمیں عطا کیا تاکہ ہم مل کر کلام خدا کو سیکھیں. کتاب مقدس کے مطابق خدا کئی ایک بار ایسے مواقع فراہم کر دیتا ہے کہ ہم خداوند کے حضور جب آتے ہیں تو شاید شکر گزاری، شاید دل میں کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی مصیبت لے کر، اس کا غم لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن خداوند اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے آج کا جو میرا موضوع ہے، بیابان سے وعدہ کی سرزمین تک کا سفر. کئی ایک بار آپ خدا کے ہوتے ہوئے بھی اسیری کے اندر، تھوڑی سی بیس کر دیجئے گا، تھوڑی بیس اور گین. پریز ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تھینک یو. کہ ایک بار ہم خدا کے حضور ہوتے ہوئے بھی بیابان کے اندر، غلامی کے اندر، اس طرح کے حالات کے اندر ہوتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن تو بھی ہم پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک آیت ہے جو یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ہل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے نہ دیکھیں نہیں تو نقصان ہوگا. سو اس لیے کئی ایک بار ہمارا ہاتھ تو ہل پر ہوتا ہے لیکن we are looking back، ہم پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے جب دیکھتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. بیابان کے اندر بھی ایسا ہی ہوا. آغاز خدا کے وعدہ سے، لیکن خدا کا وعدہ جب آتا ہے تو وہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، اور جب آپ اس وعدے پر چل رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم ٹیکنگ پروسیس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، پھر کئی ایک بار آپ پیچھے دیکھنا شروع کر دیتے اور نقصان ہوتا ہے. ایک حوالہ پڑھیں پھر ہم آگے بڑھیں گے. پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب، خدا نام لے کر موسیٰ کو بلاتا ہے. خروج کی کتاب اس کا باب نمبر 3 اور اس کی چند آیات ہم پڑھیں گے. خروج کی کتاب ہے، باب نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر 7 سے ہم پڑھیں گے. اور اگر ہم پہلی آیت سے دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو جب پکڑا، بلایا، تو وہ پہاڑ جو ہورب کے نزدیک ہے وہاں پر ایک جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا اسے دکھائی دیتا ہے، اور وہ شعلہ اس جھاڑی کو جلاتا نہ تھا. پھر کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ڈر گیا اور خدا سے نظر چراتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اب 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی. سب کہیں میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی. یاد رکھیے کہ ایک بار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تکلیف کے اندر ہوں، میں بیماری کے اندر ہوں، پتہ نہیں خدا مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. میں جس طرح کے حالات کے اندر ہوں، پتہ نہیں خدا مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. یہ لمحہ فکریہ، آپ مصیبت میں شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں تمام روئی زمین پر پھرتی ہیں. وہ ان کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے جو دل سے اسے پکارتے ہیں اور جو دل سے کامل ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ہاللیلویہ. سو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا،
मैं भाई के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, भाई हारून के लिए। हिज फ्रॉम लाहौर। मुझे एक हफ्ता पहले इनकी तरफ से इनविटेशन मिला था और मैंने इसे खुदावंद में कबूल किया, क्योंकि ये पहले भी मेरे पास आ चुके हैं। मैं भाई पालूस के लिए, इस सबब के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, बड़े ओबीडियंट हैं। भाई उस्मान के लिए भी खुदावंद ने बड़ी बरकत बख्श रखी, अपनी सारी क्वायर के लिए भी, जितने भी आप गाते हैं खुदावंद के लिए। किताबे मुकद्दस के मुताबिक सुनिएगा, यहां पर लिखा है कि वो मुसीबत में थे और खुदावंद ने देखा। कई एक बार हम मुसीबत में, बीमारियों में, तंगदस्तियों में, हालात बुरे होते हैं, हम समझते हैं पता नहीं कोई देख रहा है या नहीं, मेरे हालात से खुदा वाकिफ है कि नहीं। और फिर इस तरह की दुआएं की जाती हैं कि खुदावंद तू मेरे हालात को देख। अरे भाई वो देख रहा है। लिखा है खुदावंद ने देखा कि मिस्र के अंदर जो मुसीबत है खुदा ने खूब देखी है। खूब के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है कि खुदा ने इन डीप देखा है। हार्ट के अंदर, दिल के अंदर गम कितना है, मुसीबत कितनी है, खुदा ने मापा है, खुदा ने काउंट किया है। व्हाट अ ट्रबल। और उनकी फरियाद जो बिगाड़ लाने वालों के सबब से है सुनी, यानी जो मुसीबत पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ जो फरियाद की गई है खुदा ने सुनी। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि जो बिगाड़ पैदा कर रहे खुदा ने उनके खिलाफ जो दुआ है वो सुनी। और खुदा कहता मैंने उनके दुखों को, या मैं उनके दुखों को जानता हूं और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। हालेलुया। सब कहें खुदावंद उतरा है ताकि हमें इब्लीस के हाथों से छुड़ाए। हालेलुया। खुदावंद उतरा है ताकि हमें बहाल करे, खुदावंद उतरा है ताकि हमें आजाद करे, खुदावंद इसलिए उतरा है ताकि आप बचाए जाएं, आप निजात पाएं, आप बहाल किए जाएं, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। हालेलुया। खुदावंद के उतरने का मकसद ये है, इसलिए नहीं कि वो आपको मुसीबत में सिर्फ देखता रहे। कि एक बार हम कहते हैं खुदावंद मुसीबत में देख रहा, ठीक है, खुदावंद की यही मर्जी है। भाई बहन, जब खुदावंद आपको मुसीबत में देखता है, आपकी फरियाद उसके हुजूर जाती है, तो आपको मुसीबत में रहने नहीं देता, वो निकाल बाहर करता है। हालेलुया। अगरचे आपकी फरियाद वहां तक जाए, मुसीबत में दुआ बड़ी तब्दीली का बायस हो सकती है। आप मुसीबत में कितनी दुआ करते हैं? ये तकरीबन 400 साल, 450 साल का अरसा गुलामी के अंदर रहे हैं, मिस्र के अंदर, गुलामी के अंदर। खुदा ने फरियाद सुनी, खुदा ने बिगाड़ लाने वालों के खिलाफ खुदावंद ने सुन लिया। और लिखा है खुदावंद कहता मैं इसीलिए उतरा हूं और उस मुल्क से निकाल, यानी उस मुल्क से निकाल कर उनके एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है। व्हाट इज द गॉड्स विल। खुदावंद की मर्जी क्या है? खुदावंद की मर्जी ये है कि आपको मुसीबत से निकालकर उस जगह पर खड़ा करे जहां पर दूध और शहद बहता है। खुदावंद की मर्जी मुसीबत में रखने की नहीं है। व्हाट अ गुड न्यूज़, कितनी ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। अगर आप गुर्बत के अंदर हैं, आप बीमारी के अंदर हैं, आपके हालात बुरे हैं, तो जान लीजिए खुदावंद की मर्जी। अगर आप फरियाद करते हैं, आप दुआ करते हैं, खुदावंद देखता है, उतरता है और आपको उस जगह पर
खड़ा देखना चाहता है जहां दूध और शहद बहता है। ये खुदा का मंसूबा है। और लिखा है यानी कुनानियों और हितियों और अमोरियों और फरीजियों और होजियों और यबीसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख बन इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची। सब कहें इसराइल की फरियाद, ऊंची आवाज में कहें इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची। और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। वाह। एक और हवाला पढ़े, फिर हम 5 अहम पॉइंट हैं जो इसके ताल्लुक से जिनको सीखेंगे। खरूज की किताब उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ें तो यहां पर लिखा है, तो मूसा ने जवाब दिया। ये बातें खुदावंद ने की हैं उसके साथ ऑल द वे पूरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में खुदा बोल रहा है। खरूज तीसरा चैप्टर, गॉड इज स्पीकिंग विद मोसेस। खुदा मूसा से बात कर रहा है। लेकिन चौथे चैप्टर के अंदर मूसा खुदा के साथ बोलता है। लिखा है तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे। मूसा कहता है they will not believe me, मेरा यकीन नहीं करेंगे। ट्रस्ट ही नहीं है कि मेरी बात सुनी जाएगी या नहीं। ये मेरी बात कि वो मेरी बात सुनेंगे, वो मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है। सब कहें तेरे हाथ में क्या है। कहें तेरे हाथ में क्या है। फिर कहें तेरे हाथ में क्या है। मूसा कहता है लाठी। तेरे हाथ में क्या है, ये मैं आपसे कहता हूं। आपके हाथ में ऐसा क्या है जिसे खुदा इस्तेमाल करे। आपका पैसा, आपकी औलाद, आपके सोर्सेस, आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपकी आवाज, आपका जिस्म, आपका दिल, आपकी जान, आपका वक्त। तेरे हाथ में क्या है। मूसा कहता है मेरे पास लाठी है। खुदा कहता है मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। इसे जमीन पर डाल दे ताकि खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। आपके पास क्या है जो आप खुदा के कहने पर छोड़ रहे हैं। What are you leaving for God? आप खुदा के लिए क्या छोड़ रहे हैं। हम कहते हैं मेरे पास है, खुदा के लिए, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि ये मेरा है। मूसा कहता है मेरे पास लाठी है। खुदा कहता है अच्छा। फिर उसने कहा इसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाल दिया ताकि मौजज़ा हो। याद रखिए जो कुछ आपके हाथ में है तब तक मौजज़ा नहीं होगा जब तक आप खुदा के कहने पर इसे छोड़ेंगे नहीं। जस्ट लीव फॉर गॉड। खुदा के लिए छोड़ें अपने बच्चों को। खुदा के लिए छोड़ें अपने पैसे को। खुदा के लिए छोड़ें अपने हुनर को। खुदा के लिए छोड़ें अपने वसाइल को, सोर्सेस को। What are you living for God? आपके हाथ में क्या है। कहीं तेरे हाथ में क्या है। हाथ का मतलब है what you have in your authority. तेरे हाथ में क्या है। तेरे हाथ में क्या है। वो कहता है मेरे पास लाठी है। उसने कहा इसे छोड़ दे जमीन पर। उसने कहा छोड़ देता हूं। जब छोड़ा खुदा ने कहा अब मौजज़ा होगा और कौम की बहाली होगी। याद रखिए जो कुछ खुदा ने आपको दिया जब खुदावंद के हुजूर रख देते हैं खुदावंद कौमों की बहाली के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया।
हालेलुया। वो छोटे रिसोर्सेज हो सकते हैं, छोटे छोटे वसाइल हो सकते हैं। आपके लिए वो छोटी सी चीज हो सकती है, कौम के लिए वो बरकत का बायस हो सकती है। अब वो लाठी आम सी लाठी थी, खुदावंद ने उसे पकड़ा, इस्तेमाल किया और वो बादशाह के सामने खड़ा हुआ। और जब उसका इस्तेमाल कर रहा था, याद रखिए खुदा आम सी चीज़ों को पकड़कर ख़ास बना देता। हालेलुया, व्हाट अ गॉड वी सर्व। उसने ये नहीं कहा कि मूसा एक प्यारी सी एक फलां लकड़ी की एक वो जो है ना वो लाठी बना ले, या तो कुछ ऐसा बना ले जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूं। नो, आपके पास जो कुछ है खुदा उसी में अपने जलाल को जाहिर करने की ताकत और कुव्वत रखता है। हालेलुया। पहला पॉइंट, मूसा जाता है इसके बाद अपने उस सोर्स को लेकर, अपने उस वसीला को लेकर जिसको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है, और जहां पर खुदा कहता है वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट कि जहां पर खुदा कहता है वहां पर जाकर खड़े हो जाए। और जब खड़ा होता है तो खुदा मूसा से कहता है फिरौन के सामने ये लाठी डाल दे, वो डाल देता है। आपके हाथ में क्या है? आप खुदावंद के लिए क्या डाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं? लिखा है खुदा ने मूसा से कहा कि ने जाकर कह कि मेरे लोगों को भेज दें, जाने दें, ताकि ये मेरी इबादत करें। इसके लिए इब्रानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सिलाज इत अमी वैया अब्दूनी, जिसका सिलाज का मतलब है भेज दे, इत अमी का मतलब है मेरी कौम को, वैया अब्दूनी का मतलब है इबादत के लिए। सिलाज इत अमी वैया अब्दूनी इब्रानी में इसका मतलब है मेरी कौम को मेरी इबादत के लिए भेज दे। डोंट मेक अ बैरियर फॉर माई पीपल्स, मेरे लोगों के लिए रुकावटें ना बना। और दूसरी तरफ उसका दिल सख्त कर दिया। लिखा खुदा ने फिरौन का दिल सख्त कर दिया। खरूज चौथे बाब की 21वीं आयत, 7वें बाब की 30वीं आयत, 9वें बाब की 12वीं आयत में लिखा खुदा ने फिरौन का दिल सख्त कर दिया ताकि ये माने ना। अब एक तरफ खुदा कहता है सिलाज एत अमी वही अब्दूनी, जिसका मतलब है मेरी कौम को इबादत के लिए भेज, और दूसरी तरफ खुदा फिरौन का दिल सख्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुसीबत बड़ी है। कौम को इबादत के लिए रोका जा रहा है, खुदा के लोगों को इबादत से रोका जा रहा है। और जब रोका जा रहा है खुदा कहता है इनका दिल सख्त कर दो। What are God's plan? ये खुदा का मंसूब है। क्यों? क्योंकि मैं फिरौन पर अब आफते भेजूं। इसलिए कि फिरौन का दिल सिख इसलिए किया गया कि जो कुछ उसने किया ये इस जहां में उसकी सजा पाए। समटाइम हम ये कहते हैं ठीक है इबादत है, रोक रहे हैं, इजाजत नहीं है, लेकिन किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने फिरौन का दिल दूसरी तरफ सख्त कर दिया है ताकि आजमाइश में खुदा का जलाल जाहिर हो। और खुदा 10 किस्म की अफवाद मिस्र के अंदर फिरौन का महल भी नहीं बचता भेजता है। जो रोक रहा है खुदा इसका दिल और सख्त कर रहा है। और रोक ताकि और मुसीबत आए, और रोक ताकि और मुसीबत आए,
और रोक ताकि और मुसीबत आए। 10 बार इनकार, इबादत के लिए नहीं जाना, 10 बार आफत, हर गल तो बाद आफत, हर स्टेटमेंट के बाद आफत। फिरौन पहली दफा जाता, कहता इबादत ले जान दे, कहता नहीं। कहता अच्छा। खुदा कहता चल भाई लाठी डाल, मुसीबत। दूसरी दफा जाता है, कहता हाँ। फिरौन चूंकि जाबर था, खुदा भी जो है वो अदलो इंसाफ करता। खुदा ने कौम का बदला वहीं पर ले लिया कि तू रोक। हाँ, किन्ना को रोकना। कई दफा माँ बाप होंगे ना, बच्चे कहन बोल, वो बोलता है किधरों छड़ देना, कहते फिर बोल, वो फिर बोलता फिर मार देना, वो कहते फिर बोल, वो फिर बोलता फिर मार देना। इसी तरह इन्हों कोई 10 थप्पड़ पड़े थे, 10 सफात। फिरौन को 10 किस्म की आफत का सामना करना पड़ा, क्योंकि फिरौन का दिल भी खुदा के कंट्रोल में है और खुदा इसको सख्त कर रहा है, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि ये मुसीबत के अंदर रहे। और 10 किस्म की आफत इस पर नाजिल की खुदा ने। आजमाइश में खुदा का जलाल पहला पॉइंट है जिस पर हम बात करेंगे। कई एक बार हम ये समझते हैं आजमाइश है, मुसीबत है, फिरौन आ रहा है, फिरौन के सामने मूसा आ रहा है, फेल होकर जा रहा है, बादशाह मान ही नहीं रहा। कई एक बार हम ये समझते हैं हमने ये किया वो किया, फलां मान ही नहीं रहा। ठीक है, बी रेडी फॉर ट्रबल्स, मुसीबत के लिए तैयार हो जाएं, मुसीबत के लिए तैयार, क्योंकि खुदा ने दिल सख्त कर दिया। क्योंकि खुदा ये चाहता है अब मैं फिरौन पर मुसीबत भेजूं और मैं कौम को ऐसे ही निकाल कर नहीं ले जाऊंगा। ये बैरियर्स बना था, मैं इसके लिए मुसीबत इसको बता कर जाऊंगा कि ये मेरे लोग हैं, दीज आर माई पीपल्स। खुदा ने इसे लिया, मूसा इस्तेमाल हो रहा है, कौम की दुआएं खुदा के हुजूर है, लेकिन फिरौन का दिल सख्त है और 10 किस्म की आफत खुदा भेज रहा। आजमाइश है ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। दूसरा पॉइंट, वादा बहाली के लिए था। खुदा निकाल क्यों रहा इनको? कई एक बार कहते हैं खुदावंद तू मुझे मुसीबत से निकाल, खुदावंद तू मेरे लिए ये कर, खुदावंद तू मेरे लिए ये कर। खुदावंद कहता मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी इबादत करनी है। लेकिन हमारा गोल फ़र्क होता है, हमारा मकसद फ़र्क होता है। लिखा है इनका मकसद एक है, गुलामी से निकलना चाहते हैं, बीमारी से निकलना चाहते हैं, बुरे हालात से निकलना चाहते हैं, असीरी से निकलना चाहते हैं। तो लिखा खुदा ने इससे कहा कि अगर निकलना चाहते हो तो रास्ता एक है, इबादत के लिए। हालेलुया। I will set free you, I will set you free from all troubles just for worship and praise। मैं तुम्हें निकालूंगा क्योंकि तुम मेरी इबादत करो। इबादत से रोकने के बायस मुसीबत, कौम निकली है कि इबादत करे। वादा बहाली के लिए था, लेकिन यह बहाली जिस्मानी और रूहानी थी। लेकिन ये सिर्फ जिस्मानी बहाली चाहते थे। अब यहां पर मसला शुरू होगा। कई एक बार हम निकलना चाहते हैं, कई एक बार हम बहाल होना चाहते हैं, लेकिन वो बहाली सिर्फ जिस्मानी तौर पर चाहते हैं। खुदावंद पैसा दे दे बस इतना काफ़ी, खुदावंद तू हमें गुलामी से निकाल दे इतना काफ़ी। खुदावंद हमारा फोकस जो है वो सिर्फ जिस्मानी चीज़ों पर लगा रहता है। किताब मुकद्दस में लिखा है कि यहाँ पर हुआ क्या है। मिस्री जब इस्राएली जब मिस्र से निकलते हैं, इनका फोकस जिस्मानी तौर पर बहाली है, लेकिन खुदा इनको रूहानी तौर पर भी बहाल करना चाहता है।
सुने, बहाली दो तरह की है भाई बहन, सुनिएगा। आप खुदा के साथ किस तरह की बहाली के लिए चल रहे हैं? द काइंड ऑफ फ्रीडम यू वांट, किस तरह की बहाली? कुछ लोग कहेंगे गुरबत, ऐसा तो पता ना, पैसा होए ते सारा कुछ हो सकता है। अच्छा जी, पर सब बीमारी, पैसा हो भी तो अगर बीमारी है तो फायदा कुछ नहीं पाए, सब बीमारी तो बहाली करा दियो। अच्छा जी, पर सब पधरूआ बड़िया, कार तबाह हो गया, जेकर इथों बहाली हो जाए ना तो जो दोबारा तुहानू गिरजे च लभ के तो दस्सियो। वो साडी माँ अक्सर एक गल कहंदे ने, वो कहंदे लाहौर च हैगे सी कि वो नवां नवां कोई पादरी उठिया तो उहदे चर्च जाना शुरू हो गया। भाई नूं उन्हां कहा, खुदावंद मैनू एक गड्डी दे, मैं लोकां नूं लैके गिरजे आवां करांगा बाहर कलोनी। उन्हें कहा ठीक है। खुदावंद ने कहा बंदा तो बड़ा जुड़ गया मेरे नाल, लगता है। खुदा ने कहा लै बई गड्डी फड़। 2-4 संडे लैके गया, अगो एक शॉर्टकट लभ गया ना, पैसे कमा लेने। लो जी, पैसे कमान च पै गया। एक संडे मिस महीने च, फिर 2 संडे मिस होना शुरू हो गए महीने च, 3 संडे फिर मिस ही हो गए। फिर ऐसा मिस होया, गड्डी वजी तो फिर गिरजे आया, आप ही बच गया तो गड्डी नहीं बची। कहते पूरी गड्डी का स्टिकर बने, आप ही अंदरों बाहर निकलिया तो बाहर। खुदा ने कहा लै, अक्सर ना बदरूवा ही गिरजे लैन दियां ने, ये तुहाडे घर दे नाल तो बदरूवा चंगियां ने जिहड़ियां तुहानू गिरजे तक ते लिआंदियां ने। तो जदों वो जांदे उन्हां दे पिछे पिछे तुसीं भी टुर जांदे हो। हम इससे बहुत सारे लोग बदरू गिरफ्तार होते चर्च आ जाना है, पैसा पे हाथ रखो जरा, बदरू निकली तो उहदे पिछे पिछे आप ही भी निकल गए। तू किथे चली है, मैनू भी नाल लै जा, जो तू आएंगी उदों ही आवांगा। बदरूआ तो फिर ठीक हुई, कम अज कम गिरजे तक तो आ जाते जी, भावें कोई 2 संडे ली, भावें 4 संडे ली। बीमारी भी चंगी जी तुहानू गिरजे तक लैन दी, साथ से तंदुरुस्ती होए तो तुसीं चर्च भी ना आओ। गुरबत भी चंगी है, गिरजे तक ते आंदे हो ना। अरे भाई, ये गुलामी के अंदर है, फरियाद कर रहे हैं खुदावंद तू हमें बहाल कर। वादा पर ध्यान आ गया, खुदावंद कहता है मैं बहाल करता हूं, मैं तुम्हें निकालूंगा, वहां पर दूध और शहद बहता है, लेकिन तुमने मेरी इबादत करनी है, तुमने मेरी प्रस्तिश करनी है। अब ये बात भूल गए हैं। कहता दूध भी ठीक है, अन्नारा भी ठीक ने, लेकिन बियाबान च बछड़ा बना के प्रस्तिश करांगे। हुआ नहीं है, हुआ कि नहीं? खुदा ने क्या, सोना चांदी पूरे इलाका से जो मिस्री हैं उनसे उधार ले लो। और किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है इन्होंने सोना चांदी जेवरात उधार ले लिए कि हम इबादत के लिए जा रहे हैं। और ये मिस्र से निकले, खुदा के वादा पर चलना शुरू किया, और चलते 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 किताबे मुकद्दस में लिखा है कि मुसीबत इनकी जिंदगी में आई। और वो आई भला क्यों? क्योंकि लिखा है कि इन्होंने शक किया। When you walk on promises, जब आप वादों पर चलते हैं तो भाई ये इंसिडेंटली नहीं पूरा होना। वादा वक्त लगता है, और जेकर तुसी किसी ना वादा कर लो, तोड़ो ना, तो फिर भी वक्त लगता ना, टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है आज वादा किया तो कल पूरा। चीजें देखी जाती हैं, देखा क्या जाता है? आपका ईमान उस वादा पर कितना है, आप उस सफर के अंदर कितना भरोसा रखकर चल रहे हैं, आपका यकीन कितना है, हाउ यू ट्रस्ट ऑन गॉड। वादे के बाद आजमाइश का सफर आता है।
जब भी आप कहते खुदावंद मेरी जिंदगी में अब्राहम, इसहाक और याकूब के जैसे वादों की तकमील कर, और फिर अब्राहम, इसहाक और याकूब की तरह आजमाए भी जाना है। करो निकले मुसीबत, खैमे, बहुत कुछ। बरकत तो अब्राहम जैसी चाहते हैं, लेकिन आजमाइश नहीं चाहते। कहते खुदावंद पीरियड नहीं चाहिए, हम इस प्रोसेस में से गुजरना नहीं चाहते। किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वादा खुदा ने जो किया वो इबादत के लिए, लेकिन इबादत के लिए अगर आप निकलो तो लिखा दूध भी है, शहद भी है, मुल्क भी अच्छा, और बेस्ट लैंड, यानी वो हिस्सा, खिता जो हर एक चीज से शेर है, लेस है, खुदा उसको आपके लिए रखे हुए है। लेकिन खुदा तकाजा ये करता कि आप रूहानी तौर पर बहाल हो, जिस्मानी तौर पर बहाली आप पे ही आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर निकलते वक्त भरोसा है, ईमान है खुदा पर, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। चलो चलिए, राह जानते हैं शक का आ गया, और शक का आया तो इन्होंने मेरा गलीन यानी जसूस भेजे हैं। इब्रानी में लफ्ज़ है मेरा गलीन, यानी इन्होंने जसूस भेजे हैं। इसका मतलब है खुफिया निगरानी करने वाली टीम। क्यों जरूरत पड़ी खुदा के काम में मुदाखलत करन दी? वो देखो जित भी सकते हैं कि नहीं, पता नहीं हम हार ही ना जाएं। अब ध्यान कहां पर है? निकले खुदा के वादा पर कि बहाल करेगा, निकलते वक्त भरोसा, लेकिन चलते 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 माजी नहीं छोड़ा, और उससे भी पकड़ा हुआ है, वो यादें दिमाग के अंदर है, वो बेहतर था। लिखा है हालते हाथ रख के पीछे नहीं तकना। भैया आपको ये गीत आता है, या इससे रिलेटेड कोई गीत आता हो आप याद करिएगा। बस जो मैं कलाम सुना रहा हूं, जो खुदा करूं आपको दे। इसके बाद मैं चाहूंगा आप मेरे साथ पुट पढ़ाएं। लिखा शक और माजी की तरफ लौटना उनके लिए नुकसान का बायस। इसी ने शक को पैदा, इसी ने जसूसी करने के लिए उकसाया। मेरा गलीम जसूस भेजने के लिए जो चीजें अंदर आई हैं, वो माजी की याद और खुदा की जात पर शक। आए एक पॉइंट पर पहले आते हैं। शक, खुदा की जात पर ट्रस्ट ना करना, खुदा के हाथ पर ट्रस्ट ना करना और अपने हाथ पर भरोसा रख लेना। शक किया खुदा की जात पर, पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं खुदा करेगा कि नहीं। नुकसान हुआ, ये बियाबान के अंदर है, और वो एक हफ्ते का सफर 40 साल का सफर बन गया। अवाम भला कितनी थी? तकरीबन 2 मिलियन पीपल्स, 20 लाख के करीब लोग थे। अकेला लीडर, 20 लाख के करीब लोग। कितनी को बातें मूसा के सुननी पड़ी होंगी। मैं पिछले दिनों भी एक रील निकाली थी, मैं क्या मूसा जेरे लोकां नूं कढ के लाया मूसा के खिलाफ। वो उनकी बहाली चाहता, लेकिन शक और माजी, हम बेटर थे। दूसरा पॉइंट, हम बेहतर थे, हमारे हालात बेहतर थे। उनको अपने तरबूज, अपने वाटरमेलन, मेलन, सब्जियां नजर आ रही थी, रोटी ते चंगी लभदी सी ना। ਐਵੇਂ मूसा ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਲੀਲ कर दिता, तबाह कर दिया।
मूसा ने 20 लाख लोगों का ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ बेड़ी डूब चुकी है तो भाई ਇਹਨੂੰ ਤਾੜ ਕੋਈ नहीं सकता। इनके साथ भी यही हुआ, इनके अंदर शक आया और दूसरा माजी आ गया। कदम आगे चलते हैं, कदम रुक जाते हैं और कहते हैं नहीं इधर ठीक से है। गुलामी थी, कुछ भी था, लेकिन अच्छी रोटी थी, कम से कम घर सोते थे। लेकिन ये नहीं नजर आ रहा कि वादा है और वादे में प्रोसेस है, प्रोसेस में आजमाइश है, आजमाइश में आपने बढ़ना है और जब आप आजमाइश से निकलेंगे तो आगे दूध है, शहद है, इबादत है, आज़ादी है, बहाली है। लेकिन हमें पिछली चीजें नजर आती हैं। हम इस पीरियड में से, प्रोसेस में से, जिसमें खुदा आपको रखना चाहता है, गुजरना ही नहीं चाहते, कुंदन बनना चाहते हैं। लिखा है मुझसे सोना ले ले जो भट्टी में 7 बार तपाया गया। अच्छा, इसको ना मैं पढ़ रहा था, सोने की सारी हिस्ट्री को, चूंकि इससे रिलेट करता है कि खुदा जब प्रोसेस में डालता है, यही प्रोसेस है। सोना आप बड़े कीमती हैं, खुदा कहता है ये मेरे लोग हैं, इनको जाने दे। These peoples are very precious, ये बहुत कीमती हैं, मैं इनका खुदा हूं, इनके लिए मैं जलती झाड़ी में उतर चुका हूं। खुदा मूसा से कहता मैं इनके लिए उतरा हूं। खुदा आपके लिए उतरा हुआ है। फरियाद की है तो फिर प्रोसेस भी कायम रहो ना। अच्छा, सोने की बात करूं तो मैं एक किताब पढ़ा था, मैंने कहा कि किस तरह से होता है। मैंने एक हिस्ट्री पढ़ी किताब में, उसमें लिखा था कि सुनार जो है वो एक छोटे से चूल्हे पर एक बर्तन में सोने को डालता है कुंदन बनाने के लिए। पता कैसे चले कि ये कुंदन बन गया? आग पर तो है। क्या आप आग पर है? आप प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। अच्छा, सुनार क्या करता है? सुनार उस सोने को देखता है। कितनी देर तक? लिखा है वो उसे देखता कि उसमें से जब वो पिघलता, उसमें से तांबा, दीगर गंध, सारी चीजें अलग होती जा रही हैं कि नहीं। जब वो होती जाती है, उन्हें देखता रहता, नजर जमा कर देखता रहता, और उसका हाथ उस आग को बंद करने पर होता है। हाथ होता है कि मैं इसको कब बंद करूं, लेकिन वो देखता है कि ये कुंदन कब बनेगा। जब तक ये कुंदन ना बना, आग बंद नहीं होनी। और लिखा है, सुनिए, आग बंद, फ्लेम बंद नहीं कर रहा खुदा, उस शोले को बंद नहीं कर रहा, फ्लेम ऑफ फायर को। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता है कि आप कुंदन बने। आप उस प्रोसेस के ऊपर हैं, उस प्रोसेस के ऊपर हैं, आप उस प्रोसेस के ऊपर हैं। और लिखा है कि जब वो सोनार देखता जाता है, देखता जाता है, देखता जाता है, पता कैसे चले कि ये कुंदन बन गया? जो कुंदन बन जाते हैं सोनार के मुताबिक, सोनार को सोने के अंदर अपनी शक्ल नजर आना शुरू हो जाती है और फिर उस आग को बंद कर देता है। याद रखिए, जब तक आपके अंदर खुदा का चेहरा ना दिखेगा, आप प्रोसेस और आजमाइशों में से गुजरेंगे। Just make sure। यहां पर शक, यहां पर माजी की तरफ लौट जाने की ख्वाहिश, माजी बेटर है। ख्वाहिश ने मेरा गलीम पैदा कर दिया है, जसूस। मेरा गलीम जसूस पैदा कर दिए हैं। नुकसान किसका हुआ है? जसूसों का भी, कौम का भी, भेजने वालों का भी। क्योंकि 2 चीजें आई हैं। सब कहें शक, खुदा की जात पर शक, और माजी की तरफ लौटने की ख्वाहिश। मेरे हालात पहले बेहतर होंगे सन। भाई, खुदा ने जिस प्रोसेस में रखा है, अगर इस प्रोसेस में रहकर आप ऐसा सोचेंगे, आपकी बेड़ी डूब जाएगी।
ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा, मैं पीछे देख के कितना को आगे चल सकता हूं? सोचें, if I want to walk and I will just look forward, look to back, I'm just looking back and I want to be go forward. अगर मैं पीछे देखूं और आगे बढ़ना चाहूं तो इम्पॉसिबल है। भाई जो बाहर बैठे हैं शिलोक ना, अगे जाना है ते वेखना भी अगे ही है फिर। हालेलुया, हालेलुया। हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखना है। तीसरा हम पॉइंट था ये। हम कहां पर खड़े हैं? खुदा के वादे पर निकले तो हैं, लेकिन प्रोसेस में शक तो नहीं है, मुसीबत तो नहीं है। इब्रानियों 3 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, वो बेईमानी के सबब मुल्क किनान में दाखिल ना हुए। बेईमानी के सबब, जब ईमान में खलल आ जाए, ईमान में कमी आ जाए, ईमान जाता रहे, और इन 2 चीजों से ईमान जाता है, यू कैन ब्रेक योर ट्रस्ट। आगाज अच्छा था, आगाज अच्छा था, सफर थोड़ा था, पीरियड थोड़ा था, बढ़ा लिया। मुसीबत थोड़ी थी, बढ़ा लिया। हालात थोड़े वक्त तंग रहने सन, वदाले ने फिरौन दी तबाही ते खुदा ने ला दी, क्योंकि वो ते इबादत लिए रोक रहा सी ना। खुदा ने कहा भाई चल तू ते साइड दे होना, वो उसी समंदर के अंदर गरक। उसने कहा चल गो अवे। हाँ जी, अगे खुदा ने कहा भाई तुसी हुण टुरदे रहो। मूसा ने क्या टुरते रहो, खुदा थाड़े लिए मुहैया करेगा। खुदा दिन को बादल बन जाता, रात को आग के सतून बन जाता, विल्डरनेस के अंदर, बियाबान के अंदर। लेकिन तो भी इनके अंदर बेईमानी दाखिल हो गई। पास्ट एंड डाउट, माजी और शक आपके सफर को लेंथी कर देगा, आपके आजमाइश को बढ़ाएगा। पता नहीं खुदा ने मैनू मरन लिए इत्थे भेज दिता, पता नहीं मेरे नाल ही इदां क्यों, पता नहीं मैं ही लब्बा सा। उथे ते चंगे भले सा, पहले तो हालात बड़े अच्छे थे, अब क्या हो गया? अरे भाई, अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं खुदा आपको प्रोसेस में से निकाले, तो आप खुदा पर भरोसा रख कर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। पीछे नहीं देखना। पौलुस कहता है मैं धुंधला सा देख रहा हूं। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ कुछ ही ਲੱਭਦਾ जाएगा। खुदा में चलते हुए मैं किताब पढ़ा था, इंग्लिश में लिखा टर्नल विजन। जब एक ट्रेन सुरंग में जाती है ना, कभी कोयटा साइड पर जाए ना, तो ट्रेन सुरंग के अंदर से गुजरती है, गुफास के अंदर से। तो जब वहाँ से गुजरती ना, तो इधर देखें तो आपको अंधेरा नजर आएगा, आप इधर देखें तो आपको अंधेरा नजर आएगा, आप पीछे देखें तो आपको अंधेरा नजर आएगा, लेकिन सामने एक छोटा सा हॉल नजर आ रहा होता है जिससे लाइट निकल रही होती है। और किताब मुकद्दस में लिखा है जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो आपने सिर्फ टर्नल विजन के साथ खुदा को देखते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। टर्नल विजन। आपका विजन कैसा? इनके पास जो विजन था, दे आर लुकिंग बैक, वो पीछे देख रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, वादा पर चल रहे हैं। हाँ भाई, पतरस ने कश्ती में से जंप किया और कूदा और सीधा जंप किया पानी पर और खड़ा हो गया, बिकॉज वो यीशु को देख रहा था।
और जब चलता गया, ईमान से चल रहा था ना भाई, ईमान नहीं चल रहा सी ना, ईमान से चल रहा था ना। मेरे एक दोस्त हैं, वो कनाडा में है, मेरे स्पिरिचुअल फादर भी हैं। वो कहते हैं इन अ विंटर डेज आई एम लाइक अ जीसस। कहता मैं ना सर्दी दिनों च यसू की तरह होना, मैं पानी ते चलना। मैं क्या अच्छा जी? कहते पानी जम्मिया हुंदा ना। कोल लेक में बड़ी सर्दी होती कनाडा में। कहते मैं तो गड्डी भी चला लेना, स्केटिंग भी कर लेता हूँ, आइस स्केटिंग। मैं क्या अच्छा जी? तो देखिए खुदा ने इस कौम को भेजा कि ये वादा पर चले। अगर आप मुसीबतों पर चलना चाहते हैं, इन वादों पर चलना पड़ेगा। अगर आप मुसीबतों पर तैरना चाहते हैं, जस्ट लुकिंग टू जीसस। वो इसको देखता जा रहा है, यीशु चलता फिरता कलाम है। पतरस इसको देख रहा है, चलता जा रहा है। जो ही इससे ध्यान हटाया, नीचे देखा मेरी मुसीबत कितनी बड़ी है। जानता था मछेरा था, कहता ओ भाई वो या ते पानी बड़ा गहरा जिथे मैं उतर आया। ना 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 ना, इथों तो मछलियां बड़ी दियां। मछेरा था ना वो, यीशु को देखने की बजाय वो नीचे देखता है, इधर देखता, उधर कहता है ये पानी तो बड़ा उछल रहा है। टांगे उसकी कांपना शुरू हो जाती हैं और वो सिंक होना शुरू हो जाता है। क्या यीशु ने उसको डूबने के लिए बुलाया था? यीशु ने क्या ना आ जा, यीशु तानू भी कहता आ जाओ, ते इसलिए बुलाया कि तुसी आ जाओ तो डूब जाओ, आ जाओ तो रुड़ जाओ, आ जाओ तो गुरबत च रहो, आ जाओ तो तुसी मुसीबत च रहो, आ जाओ तो बीमारियां च रहो, आ जाओ तो बदरूहों में रहो। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि जब तक आप यीशु को देखते रहेंगे, जैसे पतरस देखता रहा वो चलता रहा। हालेलुया। अगर आप यीशु को देखते रहें, आप कलाम को देखते रहें, आप चलते रहेंगे, आप डूबेंगे नहीं। कोई तूफान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि आपको डुबो सके। कई एक बार अगर शक और माजी की कश्ती नजर आ जाए कि कश्ती चितने सा डूब रहा, एवं ये दे कहन ते निकल आया वहां, यीशु सामने है, बंदा डूब रहा है। यीशु सामने है, पतरस डूब रहा है। यही पतरस कुछ सेकंड पहले पानी पर चल रहा था। क्यों? क्योंकि शक नहीं था। अगरचे यीशु सामने हो, अगर आप शक करें और माजी की कश्ती देखें, आप डूब जाएंगे। यीशु अगरचे सामने है, अगर शक करेंगे डूब जाएंगे। इसलिए यीशु अगर सामने है, यीशु मिल गया, तो उसकी ज़ात पर शक नहीं करना। बढ़ते जाएंगे, तैरते जाएंगे, चलते जाएंगे मुसीबतों पर। हालेलुया। आप मुसीबतों पर चलने वाले लोग हैं। ये भी जब तक खुदा की ज़ात पर शक नहीं, कुलजम चो नंग गए ने। गोइंग, सफर चल रहा है, क्योंकि पीछे नहीं देख रहे, खुदा दी ज़ात पे शक नहीं है, चलते जा रहे हैं। मैंने पहले कहा कि जिन्हें रोका सुधा पट्ठा बह गया है, लेकिन ये चलते जा रहे हैं। अब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, शक आ गया है। बेईमानी चौथा पॉइंट है, बेईमानी पैदा कर देता है। आप ईमान में कितने पुख्ता हैं? क्या प्रोसेस में ईमान रखना है या अच्छे हालात में? कई दफ़ा साडा ईमान सिर्फ अच्छे हालात च होंदा है, प्रोसेस च ईमान नहीं होता। बुरे हालात में ईमान नहीं होता, अच्छे हालात में बड़ा अच्छा ईमान होता है। जो ही मुसीबत आनी है, ईमान गया। तूफानों में यीशु आता है, तूफानों को थमाता है,
क्योंकि वो ईमान में खड़ा हो जाता। और याद रखिए, जब तूफानों में आप थम जाते हैं ईमान पर, जब तूफानों में आप थम जाते हैं, आपके तूफान थम जाते हैं। समझ आई है बात मैंने क्या की है? तूफानाचे मौजों की तरह ईमान में उछलते बहते रहेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन तूफानों में जब आप ईमान पर कायम हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, और पतरस जितनी देर खड़ा रहा वो तूफान पर खड़ा रहा, पानी पर खड़ा रहा। मुसीबतें आएंगी लेकिन मुसीबतां मुकना ने जे, एक तो बाद दूजी आ जानी जे। खुदावंद मुझे इस मुसीबत से निकाल। खुदावंद ने निकाला, ईमान नहीं दूजी मुसीबत से। खुदावंद मुझे इस मुसीबत से भी निकाल, ईमान नहीं तीजी मुसीबत से। तीजी मुसीबत से खुदावंद मैनू काढ़। फिर ईमान तो डोल गया, खुदावंद ने करता आगे चल के फिर डोल गया। खुदा ने क्या, भाई ये सिलसिला ते चलता रहना, तो तू भी ईमान दे नाल चलदा जा। तूफानों में उड़ने के लिए खुदावंद ने आपको बनाया। उकाब और कव्वे की स्टोरी मैं अगले दिन सुन रहा था, किसी एक मेरे दोस्त पास्टर ने मुझे भेजी। उन्होंने कहा कव्वा जो है ना, जब उकाब नीचे आता ना शिकार के लिए, किसी भी चीज के लिए, जब वो जमीन के करीब आता है, तो कई एक बार कव्वे जो है ना उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उससे लड़ते हैं, उससे उसके पर जो है वो नोचना शुरू कर देते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। अब वो उकाब भला क्या करता है, ईगल, वो उनको मारता नहीं, लाके एक पंजे से कव्वे की जान निकाल सकता नहीं करता। क्यों? वो भला ही करता है, वो ऊपर ऊंचा उड़ना शुरू कर देता। और जैसे जैसे उकाब ऊंचा जाता जाता है, कव्वे का सांस लेना मुश्किल होता है, क्योंकि कव्वा ऊंचा उड़ने के लिए बनाया ही नहीं गया। कव्वे की परवाज़ नीचे ही रहनी है, और उकाब बुलंदियों पर उड़ने के लिए पैदा किया गया है। कई एक बार आप पैदा बुलंदियों के लिए किए जाते हैं, लोग आपके खिलाफ होते हैं, आप बुलंदियों पर चलते जाएं, उन्होंने साह लेना मुश्किल हो जाएगा। कव्वा जब सांस लेना मुश्किल होता है, वो खुद ही उसके ऊपर से उतर जाता है और नीचे गिर जाता है। कई एक बार मुकाबला नहीं, आपकी परवाज़ अगले की जान ले लेती है। आपका मारना, आपका वार नहीं, आपकी परवाज़ अगले की जान ले। खुदा के वादों पर भरोसा है, सभी खड़े हों। 5वां पॉइंट बड़ा अहम है और वो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करता है। हाउ वी बिलीव। भाई हरून प्लीज़ कम फॉरवर्ड। हाउ वी बिलीव। आए कदमों पर खड़े हो जाए, आए प्लीज़, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज जीसस। आए, आंखों को बंद करें चंद एक सेकंड्स के लिए। ओ ग्लोरी जीसस, हालेलुया। मैं बहुत सारे पॉइंट्स पर यहाँ पर बात कर सकता था, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त कम है, मैंने बेसिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। क्यों वो 40 साल बियाबान के अंदर रहे, उनका सफ़र जो तकरीबन 10 दिन का था, 7 से 10 दिन का, वो क्यों बढ़ा दिया गया, उसके पीछे कौन सी रीजंस थी। और रीजंस जो निकल कर आती हैं वो 2 ही हैं। खुदा उनको बियाबान में मरने के लिए नहीं बुलाता, लेकिन ये लोग कहते हैं खुदा ने हमें मरने के लिए, मौत के लिए बुला लिया। फिरौन कहता है नहीं जाने दूंगा, खुदा उन्हें निकालता है। वादा पर चलते हैं मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, आप खुदा के वादा पर चलने के लिए पैदा किए गए हैं। अगर आप कहें आप आंखों देखे चलें तो ऐसा नामुमकिन है। लिखा है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। ये ईमान से चल रहे थे, इन्होंने वादा की सरजमीन ना देखी थी, लेकिन जब जासूसी करके, मुदाखलत करके ये वादा की सरजमीन देखने के लिए गए,
کہ خدا نے ہمارے لیے رکھا کیا ہے, ہمارا اجر کیا ہے, ہمارا اس مصیبت میں سے نکلنے کے بعد جو ہمارا اجر ہے وہ کیا ہوگا. کئی ایک بار ہم مصیبت میں, ہم بیماری میں, ہم پروسیس میں اپنے اجر پر نگاہ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو یہ مصیبت جو گزریں گی تینوں لبے گا کی, تینوں کی لبے گا. خدا کہتا ہے میں برکت دوں گا, انہوں نے کہا تینوں کی لبے گا. خدا کے ساتھ چلتے ہوئے میرے عزیزوں صرف وعدہ پر چلتے جائیں. جو وعدہ اس نے پورا کیا ہے اسے جو کہتا ہے وہ پورا بھی کرتا ہے. اور کتاب مقدس میں جو وعدے کرتا ہے وعدے کرنے میں جو ہے وہ قائم رہتا ہے, پورا کرنے میں بھی قائم رہتا ہے. اور جو کام خداوند نے آپ کی زندگی میں, آپ کے خاندان, آپ کے گھرانے میں شروع کیا ہے اسے کبھی بیچ راہ میں نہیں چھوڑتا. اگرچہ ان کی شک, ان کے ماضی کی سوچ نے انہیں وعدہ پر چلنے سے ہٹا دیا, سفر آزمائش کا بڑھ گیا, لیکن تو بھی خدا ان کے ساتھ تھا. وہ آگ بھی بنتا رہا, وہ بادل بھی بنتا رہا, وہ من بھی برساتا رہا, وہ آپ کے لیے چشمے بھی جاری کرتا رہا.